Hello students, I hope you all have watched both the parts of the chapter, that is chapter number 8, Age of Adolescence. After that, now we are going to discuss about the question answers of the same chapter. So please watch this video very carefully to understand each of the questions and the answer which is going to be written in that particular question. So here is the exercise portion of the chapter number 8, that is Age of Adolescence. First of all, we will discuss summary of this chapter before discussing the question answer of this chapter. What we studied? We studied about the hormone. Then we studied how these hormones are released by a system, that is endocrine system. And endocrine system possesses glands. Number of glands endocrine system possesses, and those glands are known as endocrine glands. Variety of endocrine glands we studied. Then we discussed that what are the main functions of this endocrine gland, which are the major endocrine gland: pituitary gland, thyroid gland, adrenaline gland, pancreas, ovaries and testes. Then we discussed about the adolescence period and puberty period. Various physical and emotional changes take place in girls and boys during the puberty period, where at that time their reproductive organs becomes mature and becomes capable of reproduction. The hormone estrogen produced by ovaries in female is responsible for the development of secondary sexual characteristic in girls. What are the secondary sexual characters that we discussed already? The hormone testosterone, which is produced by testes in case of male, is responsible for the development of secondary sexual characteristics in boys. Nutritional requirements are also important at the time of this puberty period, or we can say adolescence period. Nutritional requirement of the body increases tremendously during the adolescence period. It is therefore important to consume a balanced diet at this stage, and don't forget about the personal hygiene. It is much more important at this stage. It is very important to say no to drugs and avoid drug abuse. Always say no to drugs and avoid them at all the cost. So don't ever take any kind of drugs, because it brings many changes in you which are harmful for you also, and it even may destroy your life, or it may destroy your career. Now let us discuss the keywords of this chapter. These keywords you have to write in the Fair Notebook of Biology. Adolescence, so the period of transition from childhood to the adulthood, is called adolescence period. Then puberty, the time of growth in which an individual becomes sexually mature and achieves reproductive maturity. Next is ovulation, the process of release of an ovum by an ovary is called ovulation. Then menstrual cycle, the cycle of producing and releasing mature ova is called the menstrual cycle. Next is drugs, the chemical substance that produces physical, mental, behavioral or emotional changes in the user are called drugs. And last one is drug abuse, the use of drug for purposes other than medicinal use is called drug abuse. मतलब कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम अपने शौक के खातिर उसको ले रहे हैं, then it is drug abuse. Okay, now we will discuss the in-text exercise first of all, that is let's remember exercise, which is given on page number 122. So here you have to identify each of the following glands and you have to label them. तो आपको अच्छे से उसको देखना है और ऐसे ही आपको लेबल करना है अपनी टेक्स्ट बुक में. The first one is given, that is pituitary gland, which is a master gland. Then second one is thyroid gland, which is located on the trachea. Then third one is adrenal gland, which is located above the kidneys. Then fourth one is pancreas, that is located near to the stomach. ये pancreas का function हमने कब डिस्कस किया था? डाइजेशन के टाइम पे भी डिस्कस किया था.
Then fifth one is ovary and sixth one is testis. Remember one thing, कि ovaries and testis both are not coming together in a single individual. Ovaries in case of female and testis in case of male. After that we will discuss the textual exercise. The first exercise is that is fill in the blanks with the correct words. याद रखना कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ तो ये ऑप्शंस जो ब्रैकेट में आपको दिए हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको ये ऑप्शन के बिना ही ये सारी ब्लैंक्स याद रखनी है और समझनी है. द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स डैश केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन. तो एंडोक्राइन ग्लैंड secrete chemical substances which are called hormones. Then dash controls the development of secondary sexual characteristic in women. तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन that is estrogen. Third one is dash is characterized by the reproductive organs in both males and females reaching maturity and beginning to function. तो उसमें आएगा adolescence. Fourth one is milk producing glands are called dash glands. So it is mammary glands. The dash releases hormones that help to prepare the uterus for a possible pregnancy. तो उसमें आता है ओवरी, बिकॉज ओवरी ही रिलीज करती है इस्ट्रोजन को, जिसकी वजह से वो यूट्रस को प्रिपेयर करती है इफ प्रेगनेंसी इज कंसीव्ड. Then sixth one is use of a drug other than medicinal use is called drug abuse. After that B is that you have to see these statements and you have to check whether it is true or false, and if it is false then you have to rectify that sentence and then you have to rewrite that sentence. So please, this exercise you have to write down in the fair notebook of biology. The first is all endocrine glands are controlled by the master gland called adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? नो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. इंस्टेड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड यू हैव टू राइट पिट्यूटरी ग्लैंड. So you have to rewrite this sentence as all endocrine glands are controlled by the master glands called pituitary gland. Second one is thyroid releases chemical substances that help to regulate sugar. So thyroid release करता है इंसुलिन को? No. Insulin is released by the pancreas. So instead of thyroid, pancreas will come. Third one is during adolescence, boys and girls only undergo physical change. So this is also false statement, because सिर्फ physical change नहीं, उसके साथ साथ emotional change भी होता है. So here while rewriting the sentence, you have to cut the only and you have to write physical change and emotional change. The fourth one is insulin is responsible for developing secondary sexual characters in males. So it is also false, because insulin की जगह पे testosterone आएगा. So here you have to replace the insulin with the testosterone. So testosterone is responsible for developing secondary sexual characters in males. The fifth one is the lining of the uterus starts breaking down and is shed accompanied by blood if the ovum gets fertilized by a sperm. तो fertilization होगा तब ये ब्लड की वॉल टूटेगी नहीं. टूटेगी कब? जब fertilization नहीं होता है तब. So over here instead of gets does not get आएगा. gets की जगह पे आपको लिखना है does not get fertilized by a sperm. Then sixth one is the nutritional requirement of an adolescent increases due to rapid physical and mental growth. So this is true statement. So no need of rectification. But उसको ऐसे ही लिख लेना और बाजू में T करके कैपिटल T कर देना. Then next exercise is match the following. Here two columns are given and you have to match accordingly as you know very well. तो endocrine system है, it is connected with the glands. तो एक में एंडोक्राइन ग्लैंड के सामने आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के सामने आएगा ग्लैंड्स. देन हॉर्मोन्स, तो हार्मोन के सामने आएगा इट इज दे आर द केमिकल मैसेंजर्स. देन एड्रेनल, तो एड्रेनल के सामने आएगा कि इट रिलीजेस द हार्मोन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. देन फोर्थ वन इज पिट्यूटरी, तो इट इज़ अ मास्टर ग्लैंड. एंड फिफ्थ वन इज एडोलसेंस, तो एडोलसेंस की एज दी है दैट इज 10 to 19 ईयर्स. देन ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन जनरली वो एक पूरी साइकिल है जो कि है 28 डेज़ की. ठीक है, आई होप दिस मेक्स द फॉलोइंग क्लियर टू यू. और ऐसे नीचे जैसे मैंने आंसर लिखे ना, ऐसे ही नीचे आप आंसर लिख देना टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से.
देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब MCQ है। तो फर्स्ट वन, विच ऑफ दिस चेंजेस आर कोज्ड ड्यू टू एड्रीनालिन, तो उसमें आएगा डी, ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारे चेंजेस आपको मिलेंगे व्हेन एड्रीनालिन इज रिलीज्ड। Then second one is which of these hormones stimulate the growth and development of the body? So here B option will come, that is GH. GH means growth hormone. Third one is which of these are secondary sexual characteristic in adolescent girls? So इसमें भी सारे के सारे changes आएंगे, तो here the correct option is option number D, all of these. Fourth one is how many days is the usual menstrual period in girl? So that is 28 days, option number A. Then next is which of these refers to the period when a woman loses the ability to have a baby? So that is menopause, option number A. Sixth one is which of these is true about hormone? तो उसमें भी all of these आएगा, तो option number D is the correct option, that is all of these. Which of these hormones regulate the blood sugar level of the body? तो इसमें correct है option number C, insulin, that maintains the blood sugar level. Eighth one is which of these are usual sign of puberty? तो अगेन इसमें आंसर आएगा all of these, option number D. Which of these glands secretes a hormone which stimulates the ovaries to release a mature ovum? तो ये उसमें आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। जब भी पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी और वो हार्मोन एक्ट करेगा एज ए सिग्नल, और वो सिग्नल रिसीव करती है ओवरी, एंड देन ओवरी विल प्रोड्यूस हार्मोन, एंड वंस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड ओवम इज प्रोड्यूस्ड। देन 10th one is which of these hormone is responsible for the development of secondary sexual characteristic in boys? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। Now next exercise is of very short answer type question. The first one is give one word for the following. The first one is the chemical substances secreted by the glands. तो answer is hormone. Second one is specialized organ that secrete particular chemical substance. तो that is glands. Then the master gland, तो it is a pituitary gland. The period of transition from childhood to the adulthood, तो that is adolescence period. The process of release of mature ovum by an ovary, तो that is ovulation. The chemical substances that produce physical, mental and emotional changes in user, that is drugs. Seventh one is the cycle of producing and releasing a mature ova, so that cycle is known as menstruation cycle. Eighth one is an adolescent girl's first menstruation, so that is known as menarche. इसका pronunciation याद रखना, menarche. After that short answer type questions are there. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट वन है व्हाट आर हॉर्मोन्स, तो यहाँ पे आपको उसकी डिफाइन लिखनी है कि हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड्स। देन सेकंड वन इज नेम एनी 5 ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमने जो भी ग्लैंड्स पढ़ी है उसमें से कोई 5 ग्लैंड के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि पेनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, एड्रेनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। इसमें से आप कोई भी 5 लिख लेना। थर्ड वन इज व्हाई इज द एड्रेनल ग्लैंड नॉन एज द इमरजेंसी ग्लैंड, तो इसमें आपको डिटेल में 2-3 सेंटेंसेस में लिखना है आंसर। मैं आपको PDF भेजूंगी, उसमें वो सेंटेंसेस के फॉर्म में आंसर दिया है, मगर इसमें मैं एक ओवरव्यू सिर्फ दे रही हूँ कि एज एड्रेनल ग्लैंड इज रिलीजिंग एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज एपिनेफ्रिन हार्मोन, कि वो कब रिलीज़ होता है, तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है, एंड उसी वजह से इसको इमरजेंसी, ये एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। देन फोर्थ वन इज डिफाइंड एडोलसेंस, तो इसकी डेफिनेशन आपको कीवर्ड्स में से मिल जाएगी, तो राइट दिस डेफिनेशन फ्रॉम द कीवर्ड्स। देन व्हाट इज मेनार्की, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द मेनोपॉज, तो यहाँ पे आपको दोनों की डिफाइन लिखनी है पहले तो, कि मेनार्की का मतलब है फर्स्ट पीरियड ऑफ एडोलसेंट गर्ल, और मेनोपॉज का मतलब है कि इट इज़ द पीरियड एट दैट टाइम अ वुमन लूजेस इट्स एबिलिटी फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सिक्स्थ वन इज नेम द हार्मोन that brings about changes during adolescence in girls, तो उसमें कौन सा हार्मोन आता है,
तो उसमें आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपको सिर्फ ये नाम ही लिखना है दैट एस्ट्रोजन इज द हार्मोन दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंस इन गर्ल्स। 7th वन इज व्हाट आर ड्रग्स, गिव 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग के डिफाइन आपको कीवर्ड्स में से मिल जाएगी कि जो कि फिजिकल इमोशनल सारे चेंजेस लाती है यूज़र में, और उसके एग्जाम्पल्स है कोकेन एंड marijuana। देन 8th वन इज डिफाइन ड्रग एब्यूज़। तो उसकी भी डिफाइन कीवर्ड्स में दी है कि मेडिसिन के तौर पे अगर आप यूज़ करते हो तब उसको एब्यूज़ नहीं बोला जाता, बट अदर देन मेडिसिनल पर्पज इफ़ यू आर यूजिंग द ड्रग्स देन इट इज़ नोन एज ड्रग एब्यूज़। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन the main glands of the endocrine system with the hormones and the role each of them plays in the human body। तो उसके लिए आपको आंसर मैं आपको पीडीएफ तो भेजने ही वाली हूँ, मगर पहले अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे पेज नंबर 109 पे टेबल 8.1 दिया है। तो ऐसे टेबल ड्रॉ करके भी आप लिख सकते हो और इंडिविजुअली 1 2 3 4 करके शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, मगर सामने हार्मोन और उसके सामने उसका रोल इन द बॉडी वो पूरा टेबल दिया है, ये पूरा टेबल आपको लिखना है इसके आंसर में। देन सेकंड वन इज द डिफाइन प्यूबर्टी, डिस्कस सम फिजिकल चेंज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडरगो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। तो यहाँ पे तो पहले आपको प्यूबर्टी की डिफाइन लिखनी है और फिर जो चेंजेस फिजिकल चेंज आते हैं वो दिए हैं पेज नंबर 109 से स्टार्ट होता है और पर पेज नंबर 120 पे ख़त्म होता है। उसमें आपको कौन कौन से लिखने हैं चेंजेस में, तो डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देन एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, देन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, देन चेंज इन बॉडी शेप, then growth of body hair, then change in voice, then increased activity of sweat and oil gland। यहाँ तक आपको लिखना है, प्रॉपरली लिखना है। ये जो मैंने टाइटल अभी भी बोला ना वो ब्लैक पेन से लिखना और उसके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ब्लू पेन से लिखना। ऐसे अगर आप लिखोगे तो प्रेजेंटेशन वाइज ये बहुत इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद ये थर्ड वन दैट with the help of a labeled diagram explain the menstrual cycle in adolescent girls। तो आपको जो पीडीएफ में भेजूंगी उसमें जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है उसके साथ साथ आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी इसके साथ डायग्राम ड्रॉ कर लेना। द डायग्राम विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 121 बोथ द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। वो पीडीएफ में सिर्फ आपको बी वाली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, मगर आपको नोटबुक में फेयर नोटबुक में ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी है, ए एज वेल एज बी डायग्राम, जो कि फिगर नंबर 8.3 पे दी है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि जो पहले तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिफाइन लिखनी है जो कि आपको बिगनिंग में दी है पेज नंबर 120 पे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल करके टॉपिक दिया है उसके नीचे तुरंत ही आपको उसकी डेफिनेशन दी है वो डिफाइन लिखनी है, और उसके बाद जो स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 करके अप टू 6 आपको वो स्टेप्स लिखने हैं प्रॉपरली। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद लाइनिंग ऑफ यूट्रस विल शेड इफ़ द फर्टिलाइजेशन डजेंट हैपन्स, उसके बाद नया एग मैच्योर होता है, उसके बाद अगेन ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद अगेन ओवम ट्रैवल्स टू द यूट्रस एंड डाइज इफ इट इज़ नॉट फर्टिलाइज। मतलब ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं इसके आंसर में। देन फोर्थ और डायग्राम आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंजेस आपको ड्रॉ करने हैं उसके लिए आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बैंगल या फिर कोई राउंड ऑब्जेक्ट ले लेना बड़ा वाला जिससे ये सर्कल अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओ। देन फोर्थ वन इज डिस्कस सम ऑफ द इमोशनल चेंजेस दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स गो थ्रू ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो उसके लिए ये आंसर आपको दिया है पेज नंबर 121 पे, वहाँ पे एक इमोशनल चेंजेस करके एक पैराग्राफ दिया है, तो होल पैराग्राफ यू हैव टू राइट। उसमें मेनली हमें किसके ऊपर फोकस, कौन कौन से इमोशनल चेंजेस हमें मिलते हैं, तो इंक्रीज इन द हार्मोनल लेवल एट दैट टाइम ड्यू टू इंक्रीज इन हार्मोनल लेवल मूड स्विंग इज़ द कॉमन प्रॉब्लम इन द एडोलसेंट बॉय और गर्ल। देन इरिटेबिलिटी होती है, अगर कोई ज़्यादा एडवाइस देता रहता है तो हमें इरिटेशन होता है।
then attraction towards the opposite sex is the common one. Then one want to take their decision by their own. किसी का इन्वॉल्वमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, स्पेशली पेरेंट्स का किसी को अच्छा नहीं लगता. एवरीवन वांट टू थिंक इंडिपेंडेंटली. तो लाइक दिस चेंजेस यू हैव टू राइट. पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है कि जहाँ तक फुल स्टॉप दिया है वो एक पॉइंट, फुल स्टॉप से जो नया सेंटेंस स्टार्ट होता है वो सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो. ऐसे आपको आंसर लिखना है अच्छे से. आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल हाइजीन नीडेड बाय द गर्ल्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस. ठीक है, पहले तो हमें कॉमन लिखना है. ये पेज नंबर 122 पे आपको दिया है. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें स्टार्टिंग में आपको दिया है वो कॉमन है, जैसे कि बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना नहीं चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इन सब के ऊपर हमें ज़्यादा मतलब फोकस करना है, ज़्यादा ये हमें हमारे डाइट में लेना है. फॉर दी गर्ल्स, एडोलसेंट गर्ल्स, बिकॉज वो टाइम पे उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो एडोलसेंस गर्ल को मेनली कौन से टाइप का फूड कंज्यूम करना चाहिए? द फूड विच इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड जिंक. उसके साथ साथ हमें पर्सनल हाइजीन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि स्वेटिंग इज़ द कॉमन प्रॉब्लम. तो अगर स्वेटिंग का हमने मतलब वो एरिया अच्छे से क्लीन नहीं किया तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली एट दी जेनाइटल एरिया. वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है. तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? तो वी कैन अवॉइड दिस बाय बाथिंग डेली एंड वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, जो कि हम करते ही हैं. देन गर्ल्स को स्पेशली एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन उनको सैनिटरी पैड्स और टैम्पन्स यूज़ करना है प्रॉपरली. देन बॉयज़ है या गर्ल्स है, ये प्यूबर्टी के और एडोलसेंस पीरियड में एक्ने और पिंपल्स की ज़्यादा तकलीफ़ रहती है. तो अपनी डाइट ऐसे चूज़ करो कि ये एक्ने और पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो, मतलब ऑयली वगैरह, स्पाइसी वगैरह खाना कम से कम खाओ, और फेस को 2-3 बार दिन में अच्छे से क्लीन करो, वॉश करो, और अगर ज़रूरत है तो आप मेडिकेशन भी ले सकते हो. सो अबाउट ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट इन फिफ्थ आंसर. देन यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन एडिशनली ऐड किए हैं. द सिक्स्थ वन इज़ राइट द रोल ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड. तो उसका आंसर आपको लिखना है. पेज नंबर आंसर दिया है ऑन पेज नंबर 121 से वो स्टार्ट होता है एंड इट विल एंड ऑन पेज नंबर 122. तो उसमें वो पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ के बारे में आपको लिखना है कि कैसे हार्मोन्स मेल में और फीमेल में चेंजेस लाता है. उसमें आपको फीमेल के केस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में लिखना है और मेल के केस में आपको टेस्टोस्टेरॉन के बारे में लिखना है. देन सेवंथ वन इज़ राइट अ नोट ऑन एडिक्टिव सब्सटेंसेस, ड्रग एब्यूज़ एंड एड्स. तो उसके लिए एक अलग से टॉपिक आपको दिया है पेज नंबर 123 पे, वो पूरा आपको लिखना है. पहले आप एडिक्टिव सब्सटेंसेस क्या है, फिर ड्रग्स क्या है, ड्रग एब्यूज़ क्या है, और उसके बाद एड्स के बारे में लिटिल बिट यू हैव टू मेंशन. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर्स आपको फेयर नोट बुक में लिखने हैं. जितना होता है उतना आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, मगर अगर परफेक्टली या फिर प्रॉपरली वो टेक्स्ट बुक में अगर आपको लगता है कि हम नहीं लिख पा रहे तो यू कैन राइट इन फेयर नोट बुक ऑफ बायोलॉजी. Now next exercise is let's recall exercise. So as always you are doing, you will complete this exercise by your own with the help of pencil. Then next exercise is let's observe. तो यहाँ पे आपको जो enlarge करके जो gland दी है वो आपको identify करनी है. तो that one is the adrenal gland and वो क्या secrete करती है? It secretes hormone that is adrenaline और epinephrine. आप दोनों में से कोई एक नाम लिख सकते हो, मगर अभी के लिए आप दोनों नाम लिखना और करके, क्योंकि आपको याद रहे कि एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन दोनों एक ही है. देन लेट्स कनेक्ट करके जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी नहीं है. नेक्स्ट इज़ लेट्स अप्लाई. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेयाज ग्रैंडफादर हैज़ डायबिटीज़ एंड हर मदर फील्स दैट नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कैन रियली हेल्प हिम. कुड शी बी राइट? वाई और वाई नॉट? मतलब कि अगर वो सही है तो क्यों सही है और क्यों, मतलब उसका रीज़न क्या है.
तो डेफिनेटली शी इज़ राइट, बिकॉज अगर डायबिटीज़ है तो हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं खाना चाहिए, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्योर डायबिटीज़। क्यों डायबिटीज़ है? तो हमें पता है, हमने डिस्कशन में आगे पढ़ा था कि पेनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, एंड दिस इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज़ प्रॉब्लम अकर। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट जिसमें मैक्सिमम शुगर रहता है वो हमें कम से कम खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। Then second one is Punita's daughter was given hormonal injections due to which she started growing facial hair. Which hormone could have caused this change? तो उसमें आंसर आता है इस्ट्रोजन, बिकॉज इस्ट्रोजन का अगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो फेशियल हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम रहता है गर्ल्स में। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सरसाइज फ्रॉम लेट्स अप्लाई। नेक्स्ट इज लेट्स एनालाइज एंड इवेल्युएट दैट यू डोंट नीड टू डू, और उसके बाद ये जो लेट्स क्रिएट करके वो भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। अप टू लेट्स अप्लाई यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, और उसके ऊपर वाली लेट्स करने के एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स properly with neat and clean handwriting into your fair notebook of biology. Use blue color and black color pen for the better presentation. And to understand the content of this chapter more better, then you have to read the chapter from the textbook. Thank you so much.